संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग संकट के समय बच जाते हैं
और कुछ अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो किसी को बचा लेती है और किसी को नहीं? आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी कहानी न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि आपके दिल को छू लेगी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से आने वाले दिनेश साहू जी, जो पहले एक तांत्रिक थे, अपनी रहस्यमयी शक्तियों से सोना निकालने का दावा करते थे। लेकिन एक दिन खुद दिनेश जी की जिंदगी पर संकट आ गया। मृत्यु का साया उनके सिर पर मंडराने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब अंत समीप है, मगर तभी एक चमत्कार हुआ। पूर्ण परमात्मा की कृपा से दिनेश जी की जान बच गई और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन है वह परमात्मा जिन्होंने दिनेश जी को मृत्यु के मुख से खींच लिया, और क्या वही परमात्मा आपकी भी रक्षा कर सकते हैं? तो आइए सुनते हैं दिनेश जी की आप बीती उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश साहू है। दिनेश साहू जी, आप कहाँ से हैं? नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2021 4 जून को। दिनेश साहू जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी किया करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्ति करते थे सर, और घर में इष्ट देव दूल्हा देव है उसका भक्ति करते। इसमें कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। उसके बाद मेरे आर्थिक स्थिति खराब होते चले गए। उसके बाद सर मेरे को पहला हार्ट अटैक आया 2012 में। उसके बाद डॉक्टर सिम्स, मतलब यहाँ होता है छत्तीसगढ़ में, मतलब बिलासपुर में, वहाँ एडमिट था। तो वहाँ कुछ दिन आराम लगा। उसके बाद 2017 में दूसरा हार्ट अटैक आया। उसके बाद 2021 में हार्ट अटैक आया। तो मेरे को काल का दूध ले जाने के लिए आ गया। तो मैं नाम नहीं लिया था उस समय नाम नहीं लिया था। तो भाई 2014 में, हमारा भाई है, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था। तो मेरे को काल का दूध ले जाने के लिए आया सर। तो मैं अपने आप, जैसे गंगा जल होता है, उसको पी लिया कि मरने के बाद कौन पिलाता है, ऐसे करके। उसके बाद काल का दूध मेरे को दौड़ाते दौड़ाते चले आ रहा था। सुबह का 9 बजे था, कोई सपना का बात नहीं है। उसके बाद जहाँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का आसन लगा हुआ था, वहाँ दौड़ते गए तो एक परमात्मा का लॉकेट आया। लॉकेट भेज दिया। तो लॉकेट को उठा रहा था, ये कबीर परमात्मा का लॉकेट है। तो उसको मैं आसन में रखने लगा तो उड़कर मेरे सीना में चिपक गया। उसके बाद मेरे जो हार्ट का रोग ऑटोमेटिक कम हो गया। उसके बाद दूसरा दिन जाकर मैं नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मेरे को बहुत लाभ मिले। गनाऊँ तो रात और दिन कम ही पड़ जाएगा सर। जैसे मैं एक तांत्रिक था सर, तो जैसे द्रव्य से अपना, मतलब सिद्धि से देखते थे, तो द्रव्य से जब गड़ा हुआ धन मेरे को दिखाई देता था, तो बताता था भाई लोगों को, जिसके यहाँ जाते थे, बुलाते थे उसको, तो निकलवाते थे। तो करीब हम लोग मतलब 40-50 किलो सोना निकलवा चुके हैं। और उसके बाद जो सोना था, जब जाते थे सोनार के पास तो डी मॉडल बता देते। जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, उसके बाद जो डी मॉडल बताते थे सोना, वो सोना बन जाता था। मतलब जब परमात्मा सोना बना देता था उसको, जिसको मोहर बोलते हैं। परमात्मा, कबीर परमात्मा आया था 600 साल पहले, तो वही मोहर डोहर बोलते हैं, उसी टाइप का है वो मोहर। उसको अभी मतलब मेरे पास 2-3 है घर में। जैसे हीरा है, जैसे कोरबा में खुदाई में गए तो हीरा भी निकाल के लाया, तो चोरी हो गए 2014 में मेरे घर में। डाका हुआ था तो करीब बहुत सोना चांदी ये सब ले गए। जितना फाइल था मेरे घर में वो सब डाकू ने ले गए। ये सोना है सर जी, ये मोहर बोलते हैं। ये करीब 20 ग्राम है एक एक। ये सिद्धि शक्ति से, द्रव्य से, जैसे ज़मीन में गड़ा हुआ धन निकालते थे। मेरे को सिद्धि प्राप्त थी सर जी। ये लॉकेट है, ये परमात्मा का। जिस समय नाम नहीं लिया था मैं, उस समय ये लॉकेट ज़मीन में पड़ा हुआ था। जिस समय मेरे को काल का दूध दौड़ाते चले जा रहा था, तो ये लॉकेट को आसन में
उठा कर रख रहा था, उस समय उड़ कर मेरे सीना में आकर चिपक गया, ये देख सकते हो। उसके बाद मेरे भाई ने फ़ोटो खींचा, मतलब ये मालिक का चमत्कार है ऐसे करके। उस समय मैं नाम नहीं लिया था, तो 2021 4 जून को नाम लिया। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे माँ को मानसिक रोग था 22 साल से, वो भी परेशानी ठीक हुआ। मेरे लड़का को 109 डिग्री बुखार था, वो भी ठीक हुआ मालिक के दया से। और मेरे को सांप, जो जहरीला सांप है, वो काटने के लिए 3 बार आया, वो भी नहीं काट पाया जब मैं मालिक से नाम दीक्षा लिया था संत रामपाल जी महाराज। नशा करते थे सर, नशा नहीं बतौर मतलब जैसे ड्रिंक, अचानक कभी मांस खा लेते, ऐसे तो नशा नहीं करते थे हम। और लाभ, मेरे बच्चा है छोटे से गुड़िया, उसके शरीर में पूरा आग लग गया था, तो आग लगने से पैर जलने लगा। तो उस समय मालिक जब बोला गांव का डॉक्टर ले जाओ, बड़े डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला 40-50 हज़ार का खर्चा आएगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से 1000-1200 में ठीक हो गया। मतलब इतना लाभ देते हैं मालिक, बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं परमात्मा। पैसा आ जाता है ऑटोमेटिक, मेरे घर का जो दरबा है जिसे दराज बोलते हैं, उसमें आ जाता है। मालिक मेरे को बहुत लाभ देते हैं हमेशा। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 17 साल से तांत्रिक क्रिया कर रहे थे, आपको सिद्धियां प्राप्त थी कि आप गड़ा हुआ सोना निकाल देते थे, लेकिन दूसरी तरफ आपने बताया कि आपकी मम्मी जी 22 साल से बीमार थी। तो फिर जब आप दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, तो आप अपनी माता जी का समाधान क्यों नहीं कर पाए? देखो सर, मतलब ये सिद्धि से क्या है, दूसरे का लाभ दे सकते। जैसे बोलते हैं दीपक दुनिया को उजेला देता है, दीपक का नीचे अंधेला रहता है, तो उसी प्रकार के ये सब होता है। तो अपना जो जब आया, मेरे मौत आया 2021 को, तो काल का दूध ले जाने के लिए आया। तो जितना देवी देवता था मेरे घर में, ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरा 56 कोटि बताते हैं, सबसे अर्जी विनती किया मालिक मेरे को एक बार बचा लो, एक बार मेरे को जीवन दान दे दो, तो कोई मेरा पुकार नहीं सुना। उसके बाद मेरे भाई 2014 से नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके आसन में दौड़ते गए। काल का दूध मेरे को दौड़ाते दौड़ाते चले जा रहा था, 9 बजे का बात है सुबह का। तो भाई अपने ससुराल में थे उस समय, तो एक परमात्मा का लॉकेट आया था, तो लॉकेट मेरे ज़मीन में पड़ा था, तो उसको उठाकर आसन में लगाने लगे, तो मेरे सीना में आकर चिपक गया। तो मालिक ने मेरे को पहले नाम नहीं लिया था, पहले से मेरे को लाभ देने चालू कर दिया। नाम दीक्षा लिया 4-5 रोज हुआ था, तो मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने सतलोक दिखा कर लाया। तो सतलोक लेकर गया सर, तो सीधा जहाँ कबीर परमात्मा रहता है वहाँ लेकर गया। उसके बाद दंडवत प्रणाम किया, तो मालिक ने सतलोक का जो वहाँ जैसे यहाँ का जो मिट्टी है काला है, वहाँ का मिट्टी वाइट कलर का रहता है। जैसे यहाँ का घर 2 मंजिल, किसी का 4 मंजिल, वहाँ का घर सिर्फ सबका एक बराबर रहता है सर। और परमात्मा ने मेरे को उत्तर दिखाया, उसके बाद मेरे को सीधा लाकर छोड़ दिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जैसे सर अनेक प्रकार के चैनलों में जैसे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसको देखकर नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद जी। सत्साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा।
जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे हमें सब अपने से नजर आएंगे। जैसे आपको बताया कि सन 1398 संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा का शरीर बहुत तेजोमय है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनके एक रोमकूप की इतनी शोभा है, यानी ये करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी नजर आवे। यदि वो परमात्मा वह मानव शरीर में है, यदि वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जा उसी प्रकाश युक्त शरीर में, तो हम उसको देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, फिर यहाँ आने का लाभ क्या हुआ। तो वो क्या करता, अपने शरीर को हल्का सरल बनाकर, हल्के तेज पुंज का अपना बना करके हल्का करके, और फिर वो यहाँ हमारे को मिलते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं कि एक बालक रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिसके कारण उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आने वाला, उतरने वाला। अब जैसे हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान रखा कि शेष नाग की सैया पर सोया था। चलो जो भी जल के ऊपर विश्राम कर ले उसने नारायण तक कह सके हैं, लेकिन अब उनकी सब शक्तियों से परिचित हम होंगे तब पता चलेगा नारायण कौन सा है। तो वहां वो आकर प्रकट होते हैं। तो वहां ऐसे ही प्रकट हुए। पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड सुनाएंगे। ये नीरू निम्मा कौन थे? ये परमात्मा सत्यपुरुष, ये चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका सत सुकृत नाम होता है, त्रेता में इनका नाम मुनिंद्र होता है, द्वापर में उस परमेश्वर का नाम करुणामय होता है, और कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपना यथार्थ नाम लेकर ही प्रकट होते हैं। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, अल्लाहू अकबर। अभी आपको वेदों से रूबरू भी कराएंगे, उसमें यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके 3 प्रकार के शरीरों में रहता है, यानी 3 प्रकार के शरीर से अपने पूरे ब्रह्मांडों की वो देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। वो कैसी स्थिति है? 3 शरीर। एक प्रकार के तो मालिक सतलोक के अंदर स्थिर रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी उसकी अधिक रहती है इससे भी। तो दूसरा वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं। उनको एक निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे वो एक लीला में तरीके से बड़े होते हैं। छोटी सी आयु में ही वो विद्वानों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़ा होते हैं, अपनी अमृत वाणी को बोलकर सुनाते हैं। वो लिपिबद्ध कर दी जाती है, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उसको सुख संवेद बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी किसी महात्मा को आकर, संत को, अच्छी आत्मा को मिल आकर के और कभी भी मिल लेते हैं, कोई साधु वेश बनाकर, भक्त संत का भेष बनाकर। ये 3 स्थिति है उस परमात्मा की। तो ये द्वितीय स्थिति यानी शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो ये नीरू निम्मा कौन थे? ये द्वापर के अंदर एक सुदर्शन भक्त हुआ है वाल्मीकि जाति में, और वो परमात्मा जब कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे, वो उनका
पक्का भगत था, और जिसने उन पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था, उस परमात्मा के इस सत भक्ति मंत्र से जो आपको प्राप्त हो रहा है। अब परमात्मा ने उसको ये यथार्थ ज्ञान दिया। सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे माता पिता आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते, इनको समझाने की चेष्टा करो। परमात्मा ने बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी कि तू कहां से ले आ, विष्णु जी से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान कहां आ गया तेरा, हम नहीं मानते। उनकी मृत्यु होगी। सुदर्शन जी जो थे, सुपद सुदर्शन वाल्मीकि, वो बड़े चिंतित थे। प्रभु ने कहा बेटा आप किस बात की चिंता किए हुए हो, ये तो सब ने आना और जाना है, जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा। तूने सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा अब तो अंतर्यामी है, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है, मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी के दुर्गति होगी, मैं चिंतित हूं। मरना तो कोई बात नहीं। और तब परमात्मा ने कहा भी, एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलूं। कहने लगा ले चलो मालिक, हम तैयार बैठा आपका दास। फिर परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरी यहां इच्छा तो नहीं है किसी या संसार की किसी वस्तु में। तब उसने कहा परमात्मा और मेरी कोई इच्छा नहीं, एक इच्छा समझो और चाहे मेरी कमजोरी समझो, आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, ये प्रभु उन्होंने भक्ति नहीं करी, अब वो कितना कष्ट उठा रहे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हे परमात्मा उनको किसी जन्म में अपनी शरण में ले लेना, उनका कल्याण करना। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने सोचा कि अब देख इतना ज्ञान दे दिया और फिर भी इतना प्रेशर इसके ऊपर, इस अज्ञान का। फिर मालिक ने सोचा कि एक मुश्किल से एक भगत तैयार हुआ है और ये और रह जाएगा इस माँ बाप के चक्कर में। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू चिंता ना करे, तेरे माता पिता को मैं अवश्य शरण बनूंगा और उसको पार कर दूंगा। तब वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गया भगवान कि अच्छा चालीब तू अब मर ले, सतलोक में चल। अब उसको सतलोक भेजा तो कहने का भाव ये है, यह भी कमजोरी है हमारी, अंत में जब तक हमारा हृदय यहाँ से कंप्लीटली नहीं हट जाएगा तो हम फिर यहीं आ जाएंगे। लेकिन जो साधना आप कर रहे हो ये अनमोल रत्न है, ये आपको यहाँ पर वापस मिल जाएगा। फिर इसका फायदा क्या हुआ, स्वर्ग में चले जाओगे, वहां देवता बन जाओगे, फिर मृत्यु होगी, फिर यहाँ 84 लाख में फिर भटकोगे। अब ये सुदर्शन का ये भी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसकी, वो भी यहीं रखने की, काल के जाल में फंसाए रखने की। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर सा था, उसके अस्थि पंजर सा दिखा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी मैं उठता हूं ना तो मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी है। फिर कहा कि मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने कहा बाबा कमजोरी है। तो वो बाबा जो है बूढ़ा नाराज हो गया और कहने लगा तो डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है क्या, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी कहेगा। तो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो यह भी कमजोरी ही थी उसकी, सुदर्शन जी की, जो न्यू कह था कि मेरी क्या इच्छा नहीं है भगवान, किसी चीज में इच्छा नहीं है, बस मेरे माता पिता की याद आवे है कि वो कितना दुखी हो रहे होंगे। यह भी कमजोरी ये थी जो यहाँ फंसा देती उसको, माता पिता के पास पटक दो, काल उसको उठा के जहां आशा तहां बासा हुई।
तो पुण्यात्माओं अगले जन्म में वो सुदर्शन जी के माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का योग हो गया। तो परमात्मा उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। 3-4 वर्ष के होके अंतर ध्यान हो गए, वापस फिर नहीं आए। जब परमात्मा ने कहा था तुम नाम ले लो, 3 वर्ष का बालक थे, और उस सुदर्शन की माता पिता वाली आत्मा से कहा कि तुम उपदेश ले लो, और वो नो के हम ये हमारे पास रहे और हमने नो के नाम ले लो, मन गुरु बना लो, देख बेइज्जती करे हमारी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। वो सारी जीवन रो रो कर काटा न, वो जीवन बहुत बुरी तरह रोते रहे, उनकी तरफ बना दी। ये सचमुच भगवान थे, हमने मानी नहीं उनकी बात। अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया, और वो भगवान शिव के उपासक थे। तो गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। इनका दोनों का फिर योग हो गया पति पत्नी के रूप में। गौरी शंकर जो है ये भगवान शिव के पुजारी थे और बहुत ही नेक आत्मा थे। निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। और कथा में जो भी कोई दान दक्षिणा आ जाती थी उसी से निर्वाह चल रहा था, और शेष जो बच जाता था भोजन से वो भंडारा कर देते थे, संग्रह नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे वो रोजी रोटी के लिए कथाएं किया करते थे, वहां लोगों ने जाना कम कर दिया। गौरी शंकर के पास उनका समूह ज्यादा हो गया, तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों को, ये काशी शहर में जन्मे थे। तो मुसलमानों ने सोचा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है, और इसके साथ ये ब्राह्मण है नहीं, और उन गुरुओं के साथ ही जनता होती थी, जो वो कहते थे वही कर देते थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती बलपूर्वक अपना जूठा पानी उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। उस गौरी शंकर सरस्वती के कपड़ों पर घर में उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती, और कह दिया ये मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब वो जो विरोधी ग्रुप था ब्राह्मणों का, उन्होंने सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं, उनका वहां कोई नहीं जाएगा, उसको अधिकार नहीं रहा हमारे पुराणों और ग्रंथों के जो है ना प्रचार करने का। गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब वो विवश हो गए, निर्वाह की समस्या आ गई, तो उनका नाम रख दिया, एक का गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हुए। निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। आयु लगभग 50 से ऊपर हो चुकी थी, 60 के आसपास। अब गंगा में स्नान करते थे पहले प्रतिदिन, अब गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया। उनके लिए समस्या आई, तो उनको धीरे धीरे पता चला कि एक सरोवर है लहर तारा नामक, और उसमें गंगा का जल ही इन वर्षा के दिनों में जब ओवरफ्लो होकर चलती है दरिया, उछल उछल कर लहरों के द्वारा वो जल से बहुत बड़ा सरोवर का रूप धारण कर लेता है। वो फिर सारा वर्ष बहुत अच्छा शुद्ध जल उसमें रहता है। तो वो दोनों जने प्रतिदिन वहां स्नान करके आते थे। रोटी रोजी के लिए, निर्वाह के लिए उन्होंने एक सिंपल सा कारखाना लाया, यानी जिसमें कुछ भी खर्च ना हो, कपड़ा बुनने के। उसमें 4-5 डंडे से गाडने होते हैं, बस लकड़ी के काट के जंगल तक, और उसमें सूत लाकर लोगों से उनको बनाने की मजदूरी लेते थे। तो जिस कारण से वो कपड़ा बुनने के कारण जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वो संतानहीन थे,
व्यक्ति तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टि, लेकिन ये बहन जो होती है इनको समाज नहीं टेकन देता। कोई ना कोई आता है, पूछता है, अरे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, एक बालक तो चाहिए था, तो फिर वो रोती है बेचारी जिसका संतान नहीं होती। तो ऐसे ही कोई एक दिन इंजेक्शन ला गया नीमा के, शाम ने कोई बात चल गई होगी, तो सुबह उठकर वो इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए चल पड़े। और शाम ने कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आकर उसको प्रेरित कर गया कि भगवान ने एक बालक तो देना चाहिए था, और बच्चे बिना तो जीव ने कुछ को ना। ऐसा हमारी अपनी सोच है, लेकिन भक्ति मार्ग में इसके विपरीत ज्ञान है। वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं। अब नीरू नीमा दोनों स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह वो चल पड़े। कहाँ? अपने उसी स्थान पर जहां प्रतिदिन स्नान करते हैं, लहर तारा तालाब पे। उधर से क्या होता है, वो परमेश्वर अपने लीला अनुसार, अपने गुणानुसार सतलोक से गमन करके, गति करके, बिजली जैसी गति तीव्रता से वहां से आया। एक प्रकाश का पुंज दिखाई दिया, प्रकाश का गोला सा, और वहां पर एक प्रत्यक्ष दृष्टा थे अष्टानंद ऋषि। वो प्रतिदिन उसी स्थान पर स्नान करने जाते थे। एकांत स्थान देखकर प्राकृतिक, वहां बैठकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से प्राप्त साधना उस का वहां अभ्यास करते थे। उस दिन भी वो नाहक स्नान करके साधना करने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद महर्षि की आंखें ऊपर को हुई, देखा तो बहुत तेज था, वो आंखें बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें सूर्य की तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकती, फिर आंखें बंद हो जाती है। बंद आंखों में हम क्या देखते हैं कि सूर्य के आकार का एक धीमा सा गोला सा दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है, प्रकाश रहित। तो ऐसे जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, परमात्मा के प्रकाश को, तो आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने से उसने क्या देखा कि कोई शिशु दिखाई देता, बालक। आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के ऊपर एक कोने में सिमट गया। आगे वो अंधेरा था, देख नहीं सका। अब उसने सोचा ये क्या देखा भगवान, अपने गुरु जी से शंका का समाधान कराऊंगा। वो तो उठकर चला गया और अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? आकाश से प्रकाश का गोला सा आया, आंखें मेरी सहन नहीं कर सकी, बंद हुई तो उसमें एक शिशु रूप दिखाई दिया, बालक का। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य की समाधान, शंका का समाधान इस प्रकार किया कि बच्चा, इस तरह के ऊपर से जो प्रकाश के तारे से टूटते हैं, तो ये कोई अवतार लोग आते हैं नीचे, वो किसी माँ के गर्भ में जाएगा और वहां से फिर जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आया है। ऊपर के लोगों से कोई अच्छी आत्मा या कोई अवतार गण आते हैं, तो ऐसे लक्षण होते हैं। अब अष्टानंद तो संतुष्ट हुआ, क्योंकि गुरु जी जो शंका का समाधान करे वो फाइनल है। अब उधर से क्या हुआ, वो नीरू नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए उसी स्थान पर लहर तारा तालाब में। रास्ते में नीमा को वो बातें याद आई जो शाम के समय किसी बहन ने उसको कुछ छेड़छाड़ कर दी थी, उसको कोई प्रेरणा कर दी थी कि बता, बालक बिना भी कोई जीवन हो से। तो वह ज्यादा दुखी हो रही थी, रोने लगी, हे भगवान,
हे भगवान शिव जी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव की पूजा हृदय से वो भूल नहीं पाए थे। और कहने लगे, भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? इस दासी को भी एक कोई लाल दे देते, कोई बच्चा दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। पता नहीं क्या क्या बात बनावे हैं, मुझे देखकर छुप जाते हैं कि ये तो मनहूस आएगी। न्यू का कवर रोवे बुरी तरह। अब नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे किस्मत में होता तो भगवान शंकर हमें दे ही देते। अब आंखें खराब ना करें, देखो बच्चा हमारा कोई है नहीं, आंखें तो रो रो कर अंधी हो जाएगी, उंगली पकड़ने वाला बुढ़ापे में कोई है नहीं, तो कुछ विचार विवेक से काम ले, मत रोया कर, चुप हो जा। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा तालाब पर आ गई। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई, नीरू स्नान करने के लिए फिर लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व, और वो 1.5 घंटा ऐसा होता है कि एक बार तो ऐसा अंधेरा दिखेगा, फिर तुरंत ही चांदना रोशनी सी बन जाती है, नो कुछ दिखाई सा खूब दिखाई देने लग जाता है। नीमा जो वस्त्र बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए वापस किनारे पर गई तो क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर लेटे हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे। ये अष्टानंद ऋषि सामने बैठा है, परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान है। अष्टानंद जी की आंखें खुली की खुली रह गई है और ये आकाश से प्रकाश आने का चित्र आपने देखा। अब नीमा ने क्या देखा कि कोई सर्प तो नहीं है, कहीं मेरे पति को ना डस ले। जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है, अपने पति को जो साथ में स्नान कर रहा था गहरे पानी में, उसको आवाज लगाई कि जी देखना, देखना ये बालक, देखना ये बच्चा डूबेगा, जल में बच्चा डूबेगा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा कि या तक कति मेंटल होली बच्चों के मुंह में, और देख अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे है। भगवान सद्बुद्धि दो दाता इसको। तो वो कहने लगा स्नान करता करता कि नीमा तू कति पागल होगी। तो उसने कहा कि नहीं जी देखना सचमुच, देखो देखो ये रहा बच्चा डूबेगा। अब नीरू ने देखा कि आज इसकी आवाज में कुछ सच्चाई है। जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा उसने कि सचमुच एक बालक है। तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, फट उठाया, कमल के फूल से में तोड़ लिया बालक को और अपनी पत्नी को दे दिया। और नीमा इस परमेश्वर को लेकर के बाहर आ गई सरोवर से। अब नीरू नहा रहा था और नीमा ने देखा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा। अपना आत्मा जिस भगवान के नाम लेते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और उस परमेश्वर के लिए दुनिया भक्त भटक रहे हैं, लाखों वर्षों, हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक तपस्याएं कर ली, वो परमात्मा ना मिला। और उस बहन को नीमा की गोदी में बैठा है। अपने आत्मा बर्फ तो दूर से ही ठंड कर देती है और निकट हो जाता, कति गर्मी आसपास नहीं आने दे। तो संसारिक जो दुख उस भगवान की प्रेजेंस में छू मंतर हो जाते हैं। और जब ये टेंशन खत्म हो जाती है तो आत्मा अपने आप को हल्का सा महसूस करती है। तो परमात्मा की उपस्थिति में ये समाप्त हो जाते हैं। तो उस जिस मालिक के नाम लेने आत्मा गदगद हो जाती है और उसको वो माई लाड कर रही है, सीने से लगा रही है, कदे उसका मुंह चूम रही है और शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर का। हे भगवान, हे शंकर भगवान, आज अर्ज करी थी हृदय ते, आज सुन ली मेरी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेखना पेखा
और धनी का नाम ना लिखा। वहां नंबर शंकर भगवान के बनने लग रहे हैं और मालिक खुद आ रहे हैं उसके लिए। तो हम ऐसे था हमारे साथ। हम लोकवेद के आधार से जो भी साधनाएं करते थे, जो भी सुख होता था प्रारब्धवश, तो हम अपने भगवानों को क्रेडिट देते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और श्याम जी हनुमान जी को, जबकि ये इनका कोई रोल नहीं प्रारब्ध के अंदर, ना ये सुख दे सकते ना ये दुख दे सकते। अब यहाँ आपको थोड़ी सी अमृतवाणी सुनाते हैं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। अपने आत्मा आपको परमात्मा की अमृतवाणी सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं वो जननी जने नभाए। पुणात्मा, ये इतना लंबा सिलेबस है कि जो दास आज शुरू करना चाहे था, सुनाना चाहा था, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया है। फिर भी ये सारा ज्ञान मिलकर ही हमें ये हमारा पूरा कोर्स होगा। अब यहां क्या बताया है कि परमात्मा ने मालूम था कबीर परमेश्वर जी को कि मैं जो वाणी अपनी बोलकर जा रहा हूं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, तो आने वाले समय में ये काल के दूत नकली कबीर पंथी इसमें बहुत सा फेरबदल कर देंगे, दंत कथा बना लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गौ चरा रहे थे, वहां मिले। 10 वर्ष के बालक थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उनको अब उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सचिति से परिचित कराए, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उन्होंने फिर वो परमात्मा की महिमा सुनाई, सारी आंखों देखी। अभी नकली कबीर पंथियों की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इनके द्वारा बताए गए परमात्मा के प्रगट का वैसे तो मिलता जुलता तो इन्होंने ठीक किया है, लेकिन हंसी आवे ऐसा ज्ञान कथा ये बिना बेतुका। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। ये देखिएगा कबीर सागर है, परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है या, और लिपिबद्ध की है आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है। ये कबीर पंथी ही इसका संशोधक है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत ये प्रकाशक व मुद्रक हैं। इसके अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके देखियो न के ऊपर अड़ंगा कर रखे हैं, ये बौद्ध सागर कबीर चरित्र बोध नामक एक सब्जेक्ट है, अध्याय है यो। इसमें चैप्टर है, यहाँ क्या लिखा है कि संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी लहर तारा तालाब में उतरा। उसमें पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उस समय अष्टानंद वैष्णव एक तालाब पर बैठे थे। वर्षा हो रही थी। बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा, उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा। बड़ा प्रकाश हुआ और वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। इस आश्चर्य में प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी आश्चर्यविंत हुए। प्रकाश के फैलते ही मयूर, चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी बोलने लगे। अष्टानंद जी ने उस तेज को देखा तो
आनकर उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से कहा। मैंने लहर तारा तालाब में एक ऐसी ज्योति का निरीक्षण किया है जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस ज्योति का आकाश में उतरे और लहर तारा तालाब में ठहरते देखा। यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा कि वह प्रकाश जो तुमने देखा उसका कौतुक शीघ्र ही तुम्हारे देखने और सुनने में आवेगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ, उस जल के ऊपर कमल के पुष्प में उतारने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। आगे इब नीरू के पूर्व जन्म की कथा। सोपत सुदर्शन के माता पिता के थे, वे दोनों भंगी का शरीर छोड़कर ब्राह्मणी हुए थे। ये आरती ठीक रखे। आगे देखिए तो दास बताना चाहता है। नीरू जुल्हा काशी नगरी में रहता था। एक दिवस वह अपनी पत्नी को अपनी स्त्री से चलाता था। अच्छा, देववात वह लहर तारा तालाब के समीप से निकला। उसकी स्त्री नीमा प्यासी हुई और जल पीने के निमित्त वह तालाब पर गई। वहां देखा तो एक बड़ा ही सुंदर बालक को कमलों में तैरता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकलकर नीरू के पास आई। अब देखो ये तो क्या कहना चाहते हैं, यहां देखा कि फिर देखना। इनका कहने का तात्पर्य ये है, अब दास तो इनकी नालायक की बताना चाहता था, ये है कि वो क्या बताना चाहता था कि देखो, तब पूछा कि ये किसका लड़का ले आई। तब नीमा ने उत्तर दिया कि मैंने तालाब में पाया है। नीरू ने कहा कि ये लड़का जहां से तू लाई है वहीं रखा, नहीं तो मालूम कि ये किसका लड़का। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐसा सुंदर बालक तो मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी। तब नीरू ने कहा कि लोग मुझको हंसेंगे और ठठाएंगे और ठट्ठे उड़ाएंगे कि मुकलावे में ही नीरू अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आया। अब इनकी नालायकी बताऊंगा, इतनी तो आपको दिखाया है कि इसमें नूर लिखा है कुछ। ये क्या कहना चाहते हैं कि नीरू अपनी पत्नी ने पहली बार लाया मुकलावे में, और रास्ते में अरनों को बड़ा जोर का राम वर्षा हो रही थी, बादल कड़के थे, खूब जोर की वर्षा हो रही थी। अष्टानंद उड़ा बैठा था उस वर्षा में, है तरह के से अकल देखो इनकी। अष्टानंद वह साधना कर रहा था उस वर्षा में। ये बिना तो की बात। वास्तविकता ये है पुण्यात्माओं, ये इनकी दंत कथा है। सच्चाई, इस सत्य को सत्य रखने के लिए, सच को ऊपर रखने के लिए, सच्चाई जो बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ये ज्ञान दिया। तो वो जो दास आपको सुनाना चाहता है, ईब समझ में आओगी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमेश्वर का वो सत्य वर्णन किया है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटनाओं को और अपनी चौपाइयों के माध्यम से ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया, और जो आज हिंदू धर्म के अंदर उन्हीं चौपाइयों को आधार मानकर भगवान श्री राम की महिमा सुनाई जाती है। अब ये दिव्य दृष्टि होती है। अब जो तुलसीदास जी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई, उसमें बहुत अंतर है। जैसे एक दूरबीन होती है, दूरदर्शी, उसका अक्षमता होती है, उसकी रेंज होती है। एक तो 1 किलोमीटर तक भी नहीं देख सकती, और एक देख ले लाखों किलोमीटर ऊपर तक का, कहीं दूर तक का। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने वो दिव्य दृष्टि दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया, और उस सच्चाई को तुलसीदास जी की तरह अपने भगवान कबीर साहिब की महिमा का वर्णन किया। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनेन माए। शब्द स्वरूप साहेब दानी, शब्द सेंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही।
जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं कि वो दास बनकर आए यहाँ पर, कहते हैं सेवक होकर उतरे, अवतरित हुए, वहां सीधे चलकर आए। वो किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ, उनका मां से जन्म नहीं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां, और जीव उदाहरण जगत गुरु, हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु माने पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देने वाले परमात्मा, वो तत्वदर्शी संत रूप में आए। काशी पूरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधारे, अधर अधार जो के तो सीधे आए ऊपर थे अदर थे। और मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदारे, जंगल में दर्शन हुए लहर तारा तालाब में। कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। कहते हैं कोटि किरण शशि भान सुध आसन अधर विमान, उस परमात्मा का वास्तविक रूप तो वहां पर है। और यहां पर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे वो जणु दमक पद्म अनंत। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, छोटे से बालक रूप में प्रगट परमात्मा कबीर देव जी के शरीर से इतना सुंदर नूर निकल रहा था जैसे करोड़ पद्म चमक रहे हो। उस समय जब नीरू ने अपने हाथों में लिया, फिर उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਣਾ ਦਾਸ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦਾਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1988 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਟੀਵੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਤ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰਾ ਪੰਜਈ। ਤੋ ਦਾਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਲਬਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਰਵਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗਤ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮਹਿਤਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੱਤ ਲੋਕ ਦੀਆਂ। ਸੱਤ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਤ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸੱਤ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਗਏ ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੱਸ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬਰਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਬਰਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਨਿਯਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੀ ਲਈਦੀ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 10 ਪੌੜੀ ਬਾਹਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਗਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ। ਤੋ ਇਹ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂੜੀ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੀਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏ, ਪਰ ਮੀਟ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ? ਫਰਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਾਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਕਾਰ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਯੂ ਜੀਵ ਆਕਾਸ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ 10ਵਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਲੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤਲੀਆਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਬਾਹਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਆ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਹਿੱਲੀ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਵਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਨੇਕਾਂ TV ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें